गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। वी विल स्टडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्कैरिस। एज यू नो, एस्कैरिस lumbricoid is commonly called roundworm and it is largest nematode of a human intestine. It belongs to phylum Aschelhelminthes and class Nematoda. First, in reproductive systems, we will study male reproductive system, female reproductive system, and after that, life history of Ascaris. Before we start with reproductive systems, we know Ascaris is unisexual or dioecious and show sexual dimorphism. Sexual dimorphism, as you know, means we can morphologically identify male and female. Here, this is diagram differentiating male and female Ascaris. So, what are the points of difference? First is size. Here you can see that male is smaller in size and female is larger in size. Male having curved posterior end and female is straight. If we talk about posterior openings, cloacal aperture is present in case of male and anus is present in case of female. Copulatory organs known as copulatory setae or pineal spicule, pineal setae are present in case of male or absent in case of female. So these are the points on the basis of which we can differentiate male and female. Now we will discuss about reproductive systems, and firstly we will talk about male reproductive system. So in case of male reproductive system, gonads and naming testes. Testes are present in case of male and ovaries are present in case of female. Before discussing male reproductive system, let's study some about gonads. So, gonads in case of Ascaris, either testis or ovary, are thread-like and each is lined by squamous epithelium. Gonads having central solid core which is known as rachis, that is central or cytoplasmic axis, and gonads are differentiated into three regions. Number 1, germinal zone, second, growth zone, third, maturation zone. Okay. In germinal zone, the germinal cells of epithelium, large terminal cells, buds of diploid cells by mitosis, and the name of that diploid cell is gametogonia. So, you can say that germinal epithelium provides gametogonia or differentiated into gametogonia by mitosis. These are present in germinal zone. Second is growth zone. Growth zone is middle part of gonad, middle region of gonad, where gametogonia transform into gametocytes. Gametocyte is next stage after gametogonia. Gametocytes are further situated around central cytoplasmic core, that what we call rachis. So you can say that in growth zone gametocytes are present. Last is maturation zone. Maturation zone is lower portion of a gonad where gametocytes are transformed into haploid gametes by the process of meiosis. Okay, in case
of maturation zone. Haploid gametes are present. Now, gonads are of two types. One is telogenic and second is hologenic. Telogenic gonads are those whose terminal part is germinal or whose terminal part provide gametogonia, gamete cells. And in case of hologenic, holo मतलब complete, whole gonad is germinal. Means the germinal epithelium of whole gonad is functional and provide or produce gametogonia. Telogenic gonads are present in case of Ascaris and hologenic gonads are present in case of other nematodes. If we draw the structure of gonad, it seems to be like that. This is terminal cells of germinal or proliferative zone. Each having nucleus. Okay. This portion is middle one, growth zone, containing gametogonia which are transformed into gametocytes. मीन्स ये जो टर्मिनल सेल्स हैं ये गैमेटोगोनिया प्रोवाइड करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी. ठीक है, वो गैमेटोगोनिया जो है वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट में, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोसाइट. मैनी गैमेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन दिस मिडल जोन. दिस पोर्शन is maturation zone or posterior part of gonad where gametocytes are transformed into haploid gametes. ओके, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले ये एक स्लाइड है जिसके अंदर बताया है about lips. Lips are present at anterior end and lips bounded mouth. These are three in number and having minute teeth. ठीक है, लिप्स जो होते हैं 3 नंबर में होते हैं और इनके पास माइन्यूट टीथ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लिप्स बाउंडेड माउथ एंड दिस इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यहाँ पे स्लाइड ऐड थी तो मैंने डिस्कस कर दी. अब हम आते हैं हमारे मेन स्ट्रक्चर पे जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़ने से पहले दो चीज़ें हैं. एक कंडीशन है मोनार्किक और एक कंडीशन है डायआर्किक. वन कंडीशन इज monarchy and second condition is डायआर्की.
ठीक है। मोनार्की कंडीशन क्या होती है? मोनार्की कंडीशन वो होती है जब सिर्फ वन सेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रेजेंट है मेल बॉडी में, और डायर्की कंडीशन वो होती है जब टू रिप्रोडक्टिव सेट्स यानी कि वन पेयर प्रेजेंट होता है मेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अस्कैरिस का हम पढ़ रहे हैं, तो अस्कैरिस के अंदर जो है वो सिर्फ सिंगल रिप्रोडक्टिव सेट प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो है आपका ये एक कंप्लीट सिंगल रिप्रोडक्टिव सेट है, ये प्रेजेंट होता है मेल में। तो अस्कैरिस के अंदर जो मेल होती हैं वो मोनार्किक होती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स की। तो डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट है टेस्टिस, सेकंड है वासा डिफरेंस, थर्ड है सेमिनल वेसिकल, फोर्थ वन इजैकुलेटरी डक्ट्स, नेक्स्ट इज क्लोएका, देन क्लोइकल अपर्चर, and last is spicule pouches. These are the different parts of male reproductive system. अब इन पार्ट्स की जो है वो हम डिटेल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो आपको शो हो रहा है इस डायग्राम में, टेस्टिस की हम बात करते हैं। तो ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं सिंगल लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक होते हैं, कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो मिडल 1/3 ऑफ बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बॉडी कैविटी में, जिसको हम बोलते हैं सूडोसील, क्योंकि एस्के हेलमिंथेस के अंदर टाइप ऑफ बॉडी कैविटी कौन सी प्रेजेंट होती है? सूडोसील प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस में मैंने तुम्हें बताया था हैविंग मिडल सेंट्रल एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है सेंटर वाली मिडल सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड रैकिस, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज वॉस डिफरेंस का। तो जो वॉस डिफरेंस है वो टेस्टिस से नेक्स्ट पोर्शन है। ये तो टीएस सेक्शन था वॉस डिफरेंस का, लेकिन टेस्टिस के अंदर क्या होता है? ऐसे सेंटर में क्या होती है? रैकिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। वास डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वास डिफरेंस जो होती हैं वो लेस कन्वोलेटेड होती हैं इन कंपैरिजन टू टेस्टिस एंड थिक वॉल्ड होती हैं, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है जस्ट एंड वाइडर देन टेस्टिस एंड हॉलो सेंट्रली, ठीक है। उससे नेक्स्ट पार्ट है सेमिनल वेसिकल का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है वो है सेमिनल वेसिकल का, ठीक है। सेमिनल वेसिकल जो है ये आपको स्काई ब्लू में दिखाई दे रहा है, ये सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल जो है वो लॉन्ग मच वाइडर मस्कुलर एंड थीकर पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये जो है वो कॉइल्ड पार्ट नहीं होता, ये स्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट होता है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन के बिलो प्रेजेंट होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेस्टाइन, इसको रिमूव करने के बाद जो है हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे ऐसे शो होता है ड्यूरिंग डायसेक्शन। तो सेमिनल वेसिकल जो है वो स्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट होता है और बिलो इंटेस्टाइन वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, सूडोसील के अंदर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इजैकुलेटरी डक्ट का। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती हैं यहाँ पे शो नहीं है आपको, बट ये वाला जो पोर्शन है इस ब्लू में, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट्स बोलते हैं, जो सेमिनल वेसिकल के जस्ट बिलो प्रेजेंट है। ये भी क्या है? थिक वॉल होता है, मस्कुलर होता है, बट क्या है? सेमिनल वेसिकल के कंपैरिजन में स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। एंड टैपर्स पोस्टीरियरली, ऐसे पीछे की तरफ जाते जाते ये क्या होता है? टैपरिंग हो जाता है, और वो क्या करता है? ज्वाइन करता है किसके साथ? रेक्टम के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंटेस्टाइन का पार्ट है रेक्टम, और यहाँ से जो है वो सेमिनल वेसिकल का पार्ट है लास्ट टैपरिंग, और ये दोनों आपस में क्या है? ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोइका बोलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो ये इजैकुलेटरी डक्ट है और ये जो है वो
इंटेस्टाइन का रेक्टम पोर्शन है। ये जब आपस में ज्वाइन करती हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोएका आपको दिखाई दे रही है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट जो है उसके पास में क्या होता है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं इसकी जो वॉल होती है यहाँ पे, ये वॉल जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड कंटेन करती हैं, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका सिक्रीशन जो है वो आपको पता है कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्लोएका की अगर हम बात करें तो क्लोएका जो है वो एक कॉमन सैक है, किसके लिए, फीकल मैटर के लिए, और जो है किसके लिए, सेक्स सेल्स के लिए, स्पर्म्स के लिए। ठीक है, एंड इट ओपन्स विद द हेल्प ऑफ क्लोएकल अपर्चर, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मिड वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, इन पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, एंड बाउंडेड विद द हेल्प ऑफ 2 लिप्स। यहाँ पे क्या है, इस क्लोएकल अपर्चर को 2 लिप्स जो हैं वो बाउंड करते हैं, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है स्पिक्यूल पाउच। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज पीनियल सैक, ये जो आपको ब्लू में शो हो रहा है, दिस इज पीनियल सैक। पीनियल सैक जो है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल पाउच भी बोलते हैं। दिस इज ए स्मॉल साइज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट डोर्सल टू क्लोएका। क्लोएका के क्या है, ये डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, एंड कंटेन ए रोड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल। ये सैक है और इस सैक के पास क्या होता है, ये ब्लैक कलर का जो आपको शो रखा है रोड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीनियल सीटे या कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स, वो प्रेजेंट होते हैं। जो पीनियल स्पिक्यूल है ये क्या है, मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जो क्या करता है, कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। कॉपुलेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो पीनियल स्पिक्यूल है इसकी जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए 2 टाइप की मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। वन इज रिट्रैक्टर मसल एंड सेकेंड इज स्पिक्यूल प्रोट्रैक्टर मसल। अब जब क्या है, ये मसल्स मूवमेंट शो करती हैं तो इस पीनियल स्पिक्यूल की जो मूवमेंट है वो रेगुलेट होती है। ठीक है, ये जो है वो सारा है किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, उसके बाद में जो हम स्टार्ट करेंगे, जो पढ़ेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो इस डायग्राम के अंदर आप जो है वो देख सकते हो, यहाँ पे आपको ट्रांसफर सेक्शन शो हो रहा है ओवरी का, और इस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर आपको ये सेंटर में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज रैकिस। तो ये रैकिस है, ऐसे ही क्या है, ये टेस्टिस के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक, ये जो सेकंड डायग्राम है ये यूट्रस का आपको ट्रांसफर सेक्शन शो किया गया है, जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट जो एग्स हैं डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस में वो क्या है, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ये इसका जर्मिनल एपिथेलियम है, सेंट्रल लैकिस है, और ये डिफरेंट क्या है, oogonia है हैविंग न्यूक्लियाई। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स इसके शो किए गए हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक है अस्कैरिस जो है स्पेशली जो हम पढ़ रही हैं वो होती है डाइडेल्फिक, और अदर नेमेटोड्स जो हैं वो होते हैं मोनोडेल्फिक। तो डाइडेल्फिक कंडीशन क्या होती है, डाइडेल्फिक, डाई का मतलब 2, तो हैविंग 2 सेट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन फीमेल बॉडी, तो उसको हम बोलते हैं डाइडेल्फिक। एंड मोनोडेल्फिक इसके अपोजिट है, हैविंग 1 सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो सिंगल होता है। बट हम यहाँ पे अस्कैरिस की बात कर रहे हैं, तो अस्कैरिस के अंदर जो फीमेल होगी उसके पास क्या है, 2 सेट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, 1 पेयर में है, तो इस वजह से वो डाइडेल्फिक कंडीशन रहेगी। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेट ये इधर और सेकंड सेट जो है ये यहाँ पे शो किया गया है, बट ये जो है वो कंप्लीट एक सेट को एलेबोरेट करके दिखाया गया है, और ये जो है वो जस्ट यूट्रस पोर्शन जो है वो शो किया गया है सेकंड सेट का। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसके कौन कौन से पार्ट हैं, फर्स्ट इज ओवरी, सेकंड ओविडक्ट, तो ये आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ओवरी है, ये वाला पोर्शन जो है वो ओविडक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑरेंज कलर की है जो यूट्रस को कवर किए हुई है, ये क्या है, ओविडक्ट है, किसकी, सेकंड सेट की। ठीक है, और ये जो है वो जो आपको ओपन करके साइड में शो किया गया है
ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ओविडक्ट है और ओवरी है, आपको एक साइड के सेट की शो की गई है डायग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन है क्या, यूट्रस। यूट्रस सिंगल और यूट्राई जो है वो प्लूरल हम बोलेंगे। उससे नेक्स्ट पोर्शन जो है वेजाइना, और वेजाइना के बाद में लास्ट पोर्शन जो है वो वल्वा प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले हम ओवरी की बात करें तो ओवरी भी यहाँ पे क्या है, वन पेयर में है, थ्रेड लाइक होती हैं, हाईली ट्विस्टेड होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ओवरी के पास क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्सिस बोलते हैं। सेकेंड इज ओविडक्ट्स। ओविडक्ट जो होती हैं वो कंपैरेटिवली थिकर एंड वाइडर होती हैं, जैसे कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता रहे थे वासा डिफरेंस का, ऐसे ही ओविडक्ट होती हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये इक्वली ट्विस्टेड होती हैं, बट वो मेल में क्या होती हैं, लेस ट्विस्टेड होती हैं। ठीक है, और अंदर से क्या है, ये हॉलो रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है यूट्राई का, तो ये यूट्रस है। यूट्रस की अगर हम बात करते हैं तो यूट्रस को हम डिवाइड कर देते हैं एक प्रॉक्सिमल पार्ट में और एक जो है वो डिस्टल पार्ट में। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, किसके पास वाला, ओवरी के। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, और ये जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, डिस्टल पार्ट कहलाएगा यूट्रस का। ठीक है, तो जो यूट्राई है वो ज़्यादा वाइडर होते हैं, थिकर मस्कुलर होंगे, और ऑलमोस्ट ट्विस्टेड ट्यूब होती हैं, लेस ट्विस्टेड होती हैं, और इनके पास के एक स्पिंचर लगा होता है। स्पिंचर कहाँ पे, जहाँ पे ओविडक्ट खत्म हो रही है और यूट्रस आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे एक स्पिंचर लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग है और जो एग्स की मूवमेंट है उसको क्या किया जा सके, गार्ड किया जा सके। ठीक है, तो वहाँ पे स्पिंचर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें किसकी, प्रॉक्सिमल पार्ट की, तो इस प्रॉक्सिमल पार्ट को हम बोलते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल। सेमिनल रिसेप्टिकल का मतलब है कि ये एग्स को क्या है, रिसीव करता है और वहाँ पे इनको क्या है, स्टोर भी करता है। ठीक है, और सेम जो है वो स्पर्म्स की स्टोरेज होती है प्रॉक्सिमल पार्ट में। ठीक है, जो एग्स की स्टोरेज होती है यूट्रस के अंदर कंप्लीट में, बट क्या है, स्पर्म्स की जो स्टोरेज होती है वो प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है सिर्फ। ठीक है, तो ये स्पर्म्स को भी क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, उसके पास यहाँ पे स्टोरेज के अलावा क्या है, फैगोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं इसके जर्मिनल एपिथेलियम में, और वो क्या करती हैं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ स्पर्म्स हैं उनको क्या है, इनग्लफ करने का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है वेजाइना। तो वेजाइना जो है वो स्मॉल साइज़ की है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ इतना सा आपको दिखाई दे रहा है। वेजाइना स्मॉल साइज़ की, थिक वॉल मस्कुलर होती हैं सेम। और वेजाइना कैसे बनी है, जब आपको दोनों साइड के यूट्रस दिखाई दे रहे हैं और दोनों साइड के यूट्रस ऐसे क्या है, फ्यूज़ कर जाती हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड के यूट्रस जब फ्यूज़ करते हैं तो वो क्या बनाती हैं, वेजाइना बनाती हैं, और वेजाइना जो है वो ओपन होती है आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ वल्वा। अनदर स्ट्रक्चर, वल्वा क्या होता है, वल्वा जो है वो एक जस्ट स्लिट लाइक अपर्चर होता है जो वेजाइना की एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड बाय लिप्स। ठीक है, और एक्ट्स एज फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर की तरह ये एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या है, आपके जो स्पर्म्स हैं वो रिसीव किए जाते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री को स्टार्ट। तो लाइफ हिस्ट्री जब हम इसकी स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से पढ़ेंगे कि जो लाइफ हिस्ट्री है, अब देखो गैमेटोजेनेसिस हो गई, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कॉपुलेशन आएगी। ठीक, कॉपुलेशन आपको पता है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो है स्पर्म्स जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल ऑर्गेनिज्म। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल जो है उसके पास क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, दैट इज़ पीनियल सीटे, एंड फीमेल हैविंग फीमेल गोनोपोर, दैट इज़ वल्वा। तो क्या है, पीनियल सीटे की हेल्प से जो स्पर्म्स हैं, मेल गैमेट हैं, वो क्या है, फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, तो जो उसके बाद ट्रांसफ़र होने के बाद में क्या है, अगली प्रोसेस होगी, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे आप देखोगे इंटरनल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो बॉडी से आउटसाइड शेड नहीं किए जा रहे हैं,
बल्कि बॉडी के अंदर क्या है, पास किए जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है और कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब है कि एंटायर स्पर्म मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज़ करता है एग के साथ, इस वजह से कंप्लीट है। नहीं तो क्या पार्शियल में क्या होता है, जैसे कि हमारे केस में क्या है कि सिर्फ हेड और जो एक्रोसोम पार्ट है वो एंटर करता है और जो बाकी पार्ट है वो क्या है, डिजेनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एंटायर स्पर्म, कंप्लीट स्पर्म फ्यूज कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो है वो कंप्लीट फर्टिलाइजेशन रहेगी। एंड आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है, जाइगोट। तो जाइगोट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। जब यहाँ पे जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बाहर क्या है, डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स लेयर जो हैं वो सिक्रिएट होनी, उनकी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इस स्टेप को बोल सकते हैं कैप्सूल फॉर्मेशन। जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 सेल्ड स्टेज है, ये फर्टिलाइज्ड सेल है। फर्टिलाइज्ड के बाद जो है वो 2 सेल्ड स्टेज है, उसके बाद क्लीवेज हुई, क्लीवेज के बाद में क्या है, नेक्स्ट इन्फेक्टिव स्टेज हुई। तो ऐसे ही क्या है किसके अंदर आता है, जब हम इसकी अर्ली डेवलपमेंट पढ़ते हैं उसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैप्सूल फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा। आप देखेंगे हमारे पास क्या है, मेल गैमीट है और क्या है, फीमेल गैमीट है। ठीक, दोनों की फ्यूजन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज जाइगोट। अब जो जाइगोट है उस सबसे पहले उस जाइगोट के बाहर क्या है, फर्स्ट लेयर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहली लेयर जो जाइगोट के बाहर क्या है, सिक्रिएट हुई है और किसकी बनी होती है, वो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स की, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स की माइग्रेशन की वजह से बनती है। ठीक है, और वो क्या बना देती है, बाद में थिक होके एक शेल बना लेती है। तो हम उसको सिंपली क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो सबसे आउटर लेयर हो गई ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और शेल की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, फिर क्या होता है, सेकेंड जाइगोट जो है वो खुद एक क्या है, नई लेयर क्या करता है, सिक्रीट करता है, जो कि क्या होती है, लिपिड की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर टू शेल, यानी कि सबसे पहले क्या है, ये आउटर मोस्ट शेल है, इनर टू शेल। इस सेल के अंदर एक और लेयर बनी जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपोइड मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर मोस्ट है ये क्या रहेगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हमने शेल बोला है सिंपली। लिपोइड मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, लिपिड की बनी है। ठीक है, ये क्या है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। उसके बाद क्या होता है, जाइगोट जब डिस्टल पार्ट में मूव करते हैं, ये चीज़ें उसके कहाँ पे हो रही थी, प्रॉक्सिमल पार्ट में हो रही थी। जब जाइगोट डिस्टल पार्ट में मूव करता है, किसके लिए, स्टोरेज के लिए, तो उसके बाहर एक और जो है वो थिक लेयर उसको सराउंड कर लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट बोलते हैं। यानी कि इसके बाहर जो है, जाइगोट के बाहर एक और लेयर बन जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट बोलते हैं, जो कि हमारी क्या होगी, थर्ड लेयर होगी। ठीक है, प्रोटीनेशियस कोट। तो इस तरह से जो एक जाइगोट है एस्केरिस के केस में वो क्या है, 3 लेयर से या 3 मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, ये कैप्सूल फॉर्मेशन के बारे में था। उसके बाद आता है कैप्सूल लेइंग। कैप्सूल फॉर्मेशन के बाद में क्या पढ़ेंगे हम, कैप्सूल लेइंग। अभी जो कैप्सूल फॉर्मेशन हुई है ये कहाँ हमने पढ़ी है, कि फीमेल के यूट्रस में। ठीक है, डिस्टल पार्ट में जो कैप्सूल है वो स्टोर्ड है। कैप्सूल लेइंग का क्या मतलब है, लेआउट करना बॉडी से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये स्टोर्ड कैप्सूल्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, इन स्टोर्ड कैप्सूल्स को बॉडी से बाहर जो है वो क्या रिलीज किया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली कैप्सूल लेइंग बोलते हैं। और जो कैप्सूल होता है वो आपका ओवल शेप का, ब्राउनिश कलर का होता है, अनसेगमेंटेड होता है और उसकी कैपेबिलिटी है कि वो सेवरल ईयर्स तक सरवाइव कर सकता है। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कैप्सूल लेइंग की, क्योंकि हाई टेम्परेचर है एंड ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर डेफिशिएंट कंडीशंस हैं इंटेस्टिनल इन्वायरमेंट की। ठीक है,
तो जाइगोट वहाँ पे क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्वाइव नहीं कर पाएगा का मतलब है कि उसकी फर्दर डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होगी इंटेस्टाइन में। तो इस वजह से उसको क्या है, लो टेम्परेचर की और हाई ऑक्सीजन की क्या है, ज़रूरत है। तो इस वजह से वो जो कैप्सूल हैं वो बॉडी से बाहर क्या है, रिलीज़ कर दिए जाते हैं, इंटेस्टाइन से जो है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वल्वा। अभी जो इंटेस्टाइन की बात हो रही है, इंटेस्टाइन की किसकी, फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। यूट्रस के बाद में जो है वो जो कैप्सूल हैं वो इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज़ होती हैं, ठीक है, और वल्वा के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो एनस है वो फीकल मैटर के लिए है, ठीक है, और जो वल्वा है वो क्या है, गैमीट्स को रिलीज़ करने के लिए ओपनिंग है, ठीक। तो यहाँ पे जो कैप्सूल्स हैं वो इंटेस्टाइन से वल्वा के थ्रू जो है वो क्या किए जाते हैं, बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट किए जाते हैं होस्ट के फेसेस के साथ भी। होस्ट के फेसेस का मतलब क्या है कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कैप्सूल्स की क्या हो रही थी, फॉर्मेशन हो रही थी, उससे क्या है ये उसकी बॉडी से जो है ये क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। और जो फीमेल है, एस्कैरिस फीमेल जो है उसको हम बोलते हैं प्रोलिफिक ब्रीडर। प्रोलिफिक ब्रीडर का मतलब है कि ये नंबर ऑफ एग्स जो है वो क्या करती है, रिलीज करती है पर डे। तो इसका जो ब्रीडिंग रेट है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको प्रोलिफिक ब्रीडर जो है वो कहा जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो कैप्सूल्स हैं वो क्या है, इंटेस्टाइन में रिलीज़ किए जाते हैं वल्वा की हेल्प से, और फिर इंटेस्टिनल जो फीकल मैटर है उसकी हेल्प से वो जो है बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, होस्ट की बॉडी से। उसके बाद में स्टार्ट होती है उसकी अर्ली डेवलपमेंट। जैसे ही जो कैप्सूल्स हैं वो होस्ट की बॉडी से बाहर रिलीज़ होते हैं तो उसकी जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है दैट इज़ अर्ली डेवलपमेंट, वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, बॉडी से बाहर आ गई जहाँ पे उनको क्या है, लो टेम्परेचर, ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में एंड मॉइस्चर जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें क्या होगी, क्लीवेज होगी, ठीक है। अभी तक हमारे पास क्या था, जाइगोट था, अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट क्लीवेज होगी। तो जब क्लीवेज की हम बात करते हैं तो वो क्लीवेज जो है वो स्पाइरल और डिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट क्लीवेज का क्या मतलब होता है कि हर एक सेल का जो फेट है वो क्या होता है, पहले से ही सेट है, ठीक है, कि किस सेल को किस चीज़ की या किस सिस्टम की किस बॉडी पार्ट की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। जो फेट ऑफ सेल्स है वो पहले से ही डिटरमाइंड है, इस वजह से हम उसको डिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं, ठीक। क्लीवेज के बाद वहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज है, 4 है, 16 सेल्ड स्टेज नोन एज ब्लास्टुला लार्वा, उसकी फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टुला लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू गैस्ट्रुला लार्वा बाय इनवेजिनेशन, ठीक है। गैस्ट्रुला लार्वा जो है विद इन 10 to 14 डेज वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज़ फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज। यह इसको हम क्या है, रैबिडिटोइड रैबिडिटीफॉर्म लार्वा भी बोलते हैं, ठीक। अब जो फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेज में ग्रो करेगी, दैट इज़ सेकेंड जुवेनाइल स्टेज, और इसको हम क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। ये कैप्सूल के अंदर ही होगा, अभी कैप्सूल जो है वो ब्रस्ट नहीं हुआ है, लेकिन बॉडी से बाहर आने के बाद हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। कैप्सूल जो है वो इस स्टेज पे सरवाइव करता है, ठीक, सेवरल ईयर्स के लिए, और इसकी फर्दर डेवलपमेंट जो है उसके लिए इसको फिर से क्या है, हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की ज़रूरत है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, वापस से जो है वो ह्यूमन बींग्स जो है यानी कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को इन्फेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास अभी तक क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज ही हुई है कंप्लीट, जो कि कैप्सूल के अंदर हुई है और बॉडी से बाहर है, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट के लिए हमें क्या है, ह्यूमन इन्फेक्शन की ज़रूरत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, ठीक। जो ह्यूमन का इन्फेक्शन है वो डायरेक्ट होता है, ओरल होता है, मींस कि या तो क्या है डायरेक्ट माउथ से, या क्या है इन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, उसकी हेल्प से क्या है सेकंड जुवेनाइल जो कैप्सूल्स हैं वो होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाती हैं। एंड फ्लाइज और कॉकरोच जो हैं इसमें वेक्टर की तरह हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको क्या है कि
रिलीज़ कर देते हैं या शेड ऑफ कर देते हैं फूड के ऊपर या वाटर के ऊपर। इसी वजह से हमें क्या है, चीज़ों को क्या है, खासकर जो एडिबल फूड है उसको क्या है, कवर करके रखना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर क्या है कि जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में एंटर किया, वो ओरल इन्फेक्शन से, वाटर फूड के कॉन्टामिनेशन से वो इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, तो होस्ट की इंटेस्टाइन में जाते ही जो कैप्सूल की कॉट है वो क्या है, डिज़ोल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज थी वो क्या है, रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, वो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज जैसे ही रिलीज़ हुई तो उसका हम स्ट्रक्चर हम बात करें तो वो कैसा होता है, लॉन्ग, सिलेंडर एंड वर्मी फॉर्म होता है। वर्मी फॉर्म का मतलब है वॉर्म लाइक होता है। ठीक है, जब वो इंटेस्टाइन में रिलीज होती है तो वो इंटेस्टाइन को बोर करती है, इंटेस्टिनल वॉल को, किसके लिए, अपना फूड जो है वो लेने के लिए, शक करने के लिए। ठीक है, इंटेस्टाइन की बोरिंग होती है। उसके बाद वो क्या है, वहाँ से पोर्टल वेन के थ्रू एंटर करती है, और पोर्टल वेन से वो क्या है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाता है। ठीक है, अबाउट 10 to 6 यानी कि 10 डेज़ के बाद और नेक्स्ट 6 डेज़ के लिए वो क्या है, कंप्लीट बॉडी के टूर पे रहता है। और उसी दौरान उसके अंदर क्या होता है, सेकंड एंड थर्ड मॉल्टिंग जो है वो कंप्लीट होती है। जो सेकंड और थर्ड मॉल्टिंग है वो लंग्स के अंदर, लंग्स एल्वियोलाई के अंदर कंप्लीट होती है, जो कि वो कब पहुंचता है, अपने 10 डे टूर में 6th ऑफ डे पे वो क्या है, लंग्स में एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद वो वापस जो है इंटेस्टाइन में एंटर करता है। इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद में जो है वो अपनी 4th मॉल्टिंग को कंप्लीट करता है, और 4th मॉल्टिंग के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अडल्ट में। क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया है कि सेकंड जो मॉल्टिंग है, सेकंड जुवेनाइल स्टेज है, वो इन्फेक्टिव स्टेज है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन बॉडी में 3rd एंड 4th मॉल्टिंग कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और 4th जो मॉल्टिंग है उसके जैसे ही कंप्लीट होते ही वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और वो क्या है, 2.5 मंथ्स के अंदर सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो स्कैरिस की जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, मोनोजेनेटिक है, मतलब सिंगल होस्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे डाइजेनेटिक नहीं है, 2 होस्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। अगर हम बात करें इसकी लाइफ साइकिल की, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अगर हम इसका फ्लो चार्ट या शॉर्ट में देखें तो क्या होगा, सबसे पहले क्या है, हमारे पास अडल्ट हैं। ठीक है, जो अडल्ट हैं वो क्या है, मेल और फीमेल हैं। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, जो गैमीट्स हैं उनकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो हमने क्या देखा, अडल्ट हैं, अडल्ट मेल और फीमेल हैं, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। गैमीट्स की क्या है, फर्टिलाइजेशन हुई। जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो क्या है, होस्ट के फीकल मैटर से बाहर रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या है, जो हमने बताया सेकंड इन्फेक्टिव स्टेज जो थी ना, वहाँ पे वो रिलीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें क्लीवेज होती है होस्ट की बॉडी से बाहर। क्लीवेज के बाद वो क्या है, सेकंड जुवेनाइल स्टेज में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, फर्दर होस्ट में वो एंटर करते हैं ह्यूमन इन्फेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट, ह्यूमन इन्फेक्शन के बाद वो ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में हैच आउट करते हैं। वहाँ हैच आउट करने के बाद वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन को बोर करते हैं, ब्लड कैपिलरीज में एंटर करते हैं। उसके बाद वो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में एंटर करते हैं। लीवर के बाद वो वेना केवा के थ्रू जो है वो राइट ऑरिकल हार्ट में, हार्ट के बाद जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो जो है वो लंग्स में एंटर करती हैं। ठीक है, लंग्स में जब वो जैसे ही एंटर करते हैं वो अपनी सेकेंड मॉल्ट कंप्लीट करते हैं, 3rd जुवेनाइल स्टेज को। और उसके बाद क्या है, उसी 3rd मॉल्ट को कंप्लीट करती हैं, जो कि उसकी 4th जुवेनाइल स्टेज होती है। ठीक है, वो उसकी लंग्स में कंप्लीट होती है। तो वो वापस से क्या है, ट्रैकिया, फेरिंग्स के थ्रू गुलेट में, इसोफेगस में, स्टमक में, और वापस से क्या है, इंटेस्टाइन में आ जाती हैं। ठीक है, 4th माउल्ट जो है वो वापस क्या है, इंटेस्टाइन में आ गए। इंटेस्टाइन में 4th माउल्ट के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, अडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद फिर से क्या है, वो गैमेट्स बना के फर्टिलाइजेशन जो है प्रोसेस उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो मैन के अंदर कितना लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कितना हो रहा है।
तो ये जो यहाँ पे इतना जो लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और सिर्फ ये जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंप्लीट हो रहा है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है, फर्टिलाइज्ड सेल गए, उसके बाद उसमें क्लीवेज हुई, क्लीवेज के बाद जो है वहाँ पे ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला के बाद फर्स्ट जुवेनाइल, और उसके बाद में सेकंड जुवेनाइल स्टेज। इतनी जो चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंप्लीट हो रही है। सेकंड जुवेनाइल स्टेज से वो ह्यूमन इन्फेक्शन कर रहा है। ह्यूमन इन्फेक्शंस में क्या है, वो सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट है, लंग्स है, ट्रैकिया है, वापस से इंटेस्टाइन है, ठीक है। और इंटेस्टाइन में फिर क्या है, थर्ड और फोर्थ जुवेनाइल स्टेज कंप्लीट करके अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और अडल्ट में फिर गैमेट बन रहे हैं, गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्टिलाइज्ड जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। वो फर्दर क्या है, ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइनल मैटर से, फीकल मैटर से, बॉडी से बाहर जो है वो क्या है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये सारा था अस्कैरिस की लाइफ साइकिल का। और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो एग्ज़ाम के अंदर आती है। लास्ट ईयर जो है वो 10 मार्क्स में सिर्फ फ्लो चार्ट जो है वो पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा टॉपिक रहता है। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा जो हैं वो ऐड की हैं। ट्रांसफर सेक्शन है मेल एंड फीमेल का, ये जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके अंदर आपको इस टाइप से स्लाइड जो है वो दिखाई जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पैथोजेनिसिटी है। पैथोजेनिसिटी में हम बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो जहाँ जहाँ पे इन्होंने सर्कुलेट किया है कि अस्कैरिस है, एंटेरिसिस है, कि सबसे पहले जो है वो इंटेस्टाइन में गया है। इंटेस्टाइन के अंदर जो गया है, इंटेस्टाइन अब उसने ह्यूमन बॉडी में जहाँ जहाँ मूवमेंट की है उस जगह को क्या है वो इन्फेक्ट करता चलेगा। सबसे पहले इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या है वो एब्डोमिनल पेन जो है, इसके कैरेक्टर्स हैं, इनडाइजेशन है, वीकनेस, एनीमिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये है कॉज करता है। और इससे जो मेन डिजीज़ होती है इसके हैवी इन्फेक्शन से, उसको हम बोलते हैं एस्कैरियासिस, ठीक है। उसके बाद एंटीरेसिस भी करेगा, मतलब इंटेस्टाइन में गया है तो इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन ब्लॉक भी हो सकती है। उसके बाद क्या है, ये अपेंडिटिक्स भी कॉज करता है, मींस की जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट है उसकी इन्फ्लेमेशन और एनलार्जमेंट कॉज करेगा। नेक्स्ट ये है हिपैटिस भी कॉज करेगा, क्यों, क्योंकि ये लीवर को भी इन्फेक्ट कर रहा है। उसके बाद में क्या है, नर्वस प्रॉब्लम भी ये कॉज करेगा, ठीक है, अगर ये ब्रेन में चला जाता है तो। उसके अलावा हीमोरेज है। हीमोरेज का मतलब है कि वाइटल ऑर्गन्स जैसे किडनी है, स्पाइनल कॉर्ड है, इनको क्या है ये ब्लॉक कर देगा, इनकी इन्फ्लेमेशन करेगा जहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये लंग्स को अगर हैवी इन्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो जिसकी वजह से न्यूमोनिया भी कॉज हो सकता है। जो एल्वियोलर टिश्यू है उसकी क्या है इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। इसके डायग्नोसिस के लिए जैसे स्टूल टेस्ट है, स्क्रैच टेस्ट, डर्मल टेस्ट, ये डिफरेंट टेस्ट हैं। एंड प्रोफाइलैक्सिस में हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हमें क्या ध्यान में रखनी चाहिए। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इसका, कि जो ह्यूमन फीकल मैटर है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, सीवेज सिस्टम होना चाहिए। जो एडिबल चीज़ें हैं, फूड है हमारा, वो प्रॉपर क्या है कवर होना चाहिए, उनकी वॉशिंग होनी चाहिए, हैंड्स की वॉशिंग होनी चाहिए, नेल्स वगैरह जो है वो कट होनी चाहिए। डिफरेंट चीज़ें हैं प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। और ट्रीटमेंट के लिए क्या है, एंटी एस्केरेसिस ड्रग्स हैं वो हम क्या है ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक रहता है आपका वो है पैरासिटिक अडेप्टेशंस इन केस ऑफ अस्कैरिस, जिसका मैंने आपको जो है वो असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो पैरासिटिक अडेप्टेशंस के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं। पैरासिटिक अडेप्टेशंस में आती हैं कि मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस आएंगी, उसके अलावा जो है वो क्या है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस आएंगे, रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशंस आएंगे। मतलब क्या है कि जो डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं इनमें क्या होता है कि जो अस्कैरिस है उसके पास ऐसी कौन कौन सी अडेप्टेशन है जिसकी हेल्प से वो क्या है एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, या ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो ईजी हो रहा है, या उसकी ग्रोथ जो है वो ईजी हो रही है। तो सबसे पहले जो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल क्या है सिंपल होती है, ठीक है। और उसके पास क्या है क्यूटिकल होती है, रेजिस्टेंट क्यूटिकल है, क्योंकि हमने देखा उसके अंदर कैप्सूल फॉर्मेशन वगैरह हो रही है तो वो क्या है वाटर के लिए इम्परमिएबल है, ठीक।
तो इस तरह से रेजिस्टेंट क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो वर्म को क्या करती है, प्रोडक्ट करती है। किससे प्रोडक्ट करेगी, वो जो होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस हैं उससे उसको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, सिंपल मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि इसका प्रोटेक्टेड हैबिटेट है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर रहता है तो वहाँ पे इसको क्या है, बाहर किसी से क्या है, हाँ, सबको इंडिविजुअल अलग अलग किसी भी अदर इन्फेक्शन से क्या है, इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो सिंपल मॉर्फोलॉजी की वजह से क्या है, ये वेल प्रोटेक्टेड रहता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन वगैरह भी नहीं है, सेंस ऑर्गन भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी सिंपल है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के अंदर क्या आता है कि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में ये आता है कि मान लो कंपनसेट द एब्सेंस ऑफ अडहेसिव अपरेटस, मतलब इसके पास क्या है, अडहेशन के लिए कोई अपरेटस नहीं है, मतलब कि ये होस्ट के साथ में अटैच हो जाए। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इसके पास में क्या है, बॉडी मूवमेंट्स हैं, जो कि क्या है, डोर्सो वेंट्रल अंडुलेशंस होती हैं, प्रिस्टैलिटिक मूवमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, ये होस्ट की बॉडी में इजीली बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा फिजियोलॉजी में और क्या आएगा, फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन, तो क्या करता है, ये शकिंग एक्शन शो करता है। इंटेस्टाइन से क्या कर रहा है, फूड वगैरह शक कर रहा है, तो फूड क्या है, पहले से ही प्री डाइजेस्टेड है। ठीक है, तो इसका जो शकिंग एक्शन है वो क्या है, इसमें हेल्प करता है, और इसको क्या है, कोई फर्दर डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती कि इसको फूड को डाइजेस्ट करना है कुछ इस टाइप से, क्यों, क्योंकि ये प्री डाइजेस्टेड फूड ले रहा है। ठीक, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम को कंपनसेट करने के लिए इसके पास क्या है, इसके पास सिलोमिक फ्लूइड है, जो सूडोसिलोम है ना, सूडोसिलोम बॉडी कैविटी में क्या होता है, सिलोमिक फ्लूइड होता है। तो सूडोसिलोमिक फ्लूइड जो है वो क्या करता है, इस कंप्लीट फूड को इसकी बॉडी के अंदर जो है वो मूव करने में हेल्प करता है। और क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है तो ये क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। ठीक है, और ये क्या है, एंटी एंजाइम्स भी सिक्रेट करता है, जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन के अंदर सबसे पहला इसमें हाई रिप्रोडक्टिव रेट है, जो मैंने तुम्हें बता दिया कि लार्ज नंबर में क्या है, एग्स प्रोड्यूस करती हैं फीमेल्स। उसके बाद डिस्पर्सल है, तो जो एग्स और कैप्सूल्स होती हैं वो लाइटर होती हैं, स्मॉल साइज़ के होती हैं, तो उनका डिस्पर्सल भी क्या है, ईजी है, और वो न्यू प्लेसेस पे क्या है, ईजिली डिस्पर्स कर सकती हैं। और थर्ड जो है वो रिप्रोडक्टिव में कैसे कि इन्फेक्शन जो है वो इनका ईजी है, क्यों, क्योंकि जस्ट ये क्या है, डायरेक्ट ओरल कंटामिनेशन फूड वाटर की हेल्प से क्या कर रही हैं, होस्ट की बॉडी में एंटर कर सकते हैं ईजिली, तो इनका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो भी ईजी है। तो ये डिफरेंट अडेप्टेशंस आती हैं किसके अंदर, पैरासिटिक अडेप्टेशंस में। तो पैरासिटिक अडेप्टेशंस भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और इसकी लाइफ हिस्ट्री जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ में ये टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट होता है।